Hello everyone, Radhe Radhe, Atma Namaste everyone. It's nice to see so many of us have joined on time. A very warm welcome to everyone who have joined today's webinar. It's on Vedic Numerology, Class 1, as well as also a demo session for people who wanted to join the Basic Numerology course. So friends, can we have everyone's introduction please? Can all of you please put your cameras on so that we can interact before we start with the classes? आत्मा नमस्ते दीदी। आत्मा नमस्ते राकेश जी, हाउ आर यू? एकदम फाइन दीदी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इट्स सो नाइस टू सी आप ज्वाइन किए हो, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए भैया आपके इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वन ऑफ द मोस्ट व्हाट टू से लव स्टूडेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट जो आप न्यूमरोलॉजी के। भैया आपकी इंस्पिरेशन हो और स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। दीदी सब आपका ब्लेसिंग है और बाकी सबको अपना अपना मेहनत से ही जानेगा। और आप तो एकदम मैंने ट्रिमेंडस हो, आपका जो बात है, जो कैलकुलेशन है और जैसे आप जो पढ़ाते हैं वो तो मतलब जितनी बार भी आपको पूछ ले आप बिल्कुल भी मतलब क्या ना इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, उल्टा और भी अच्छा से समझाते हैं। हम जैसे आपको क्वेश्चन करता है बार बार। नहीं डेफिनेटली यस, वो हर एक टीचर की ड्यूटी होती है कि उसके स्टूडेंट्स में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, ऑब्वियसली वो एक टीचर का एसेंस होता है। जब तक आपके डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर नहीं होते, ऑफ कोर्स यस, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वही तो एसेंस है न्यूमरोलॉजी का। यस, तो थैंक यू सो मच राकेश भैया। तो Riti, I would want you to introduce yourself. Hello everyone, Atma Namaste. I am Riti Keshan. I am a pranic healer. I have done a basic numerology course from Rashmi Saraf. She is my elder sister, my own fraternal sister, and she is an amazing teacher. Apart from being an amazing sister, she is an amazing teacher. Along with basic course, she has given many important facts about advanced numerology also. So only after doing the basic course, I got so much interested in that. Like I keep asking everybody, what's your date of birth? I want to know about their chart, date of birth, their life. You know, it's really very interesting and amazing course to join. And Rashmi is a very good mentor. So if anybody interested to join this course, I would really, tell you that you can always join her classes. Amazing classes. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you so much, Riti. Thank you for your lovely words and your nice introduction. And so coming to we can see Neha ji ने अपना camera on किया है. Thank you so much, Neha ji. So Neha ji, please introduce yourself. So we can know each other better. हम लोग एक दूसरे को अच्छे से बेहतर जान पाते हैं. तो क्लास के लिए भी बहुत important है. Yes, ma'am. Please continue. Hi, I am Neha Agarwal. I am a housewife basically. I have met Rashmi in the exhibition. We put the exhibition together over there. There she gave us some workshop about the numerology, and I liked it a lot, actually a lot. So today I got an opportunity to attend her session again. So I thought let's listen again. Thank you so much. Thank you so much, Neha ji. It's so nice of you to rejoin the session again. Thank you so much for joining. So coming to Ritika ji, can we please have your camera on so we can see you and we can also get your introduction? Hi Rashmi ji. हेलो। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो हमको। माय नेम इज रितिका। मैंने अभी रिसेंटली रश्मि जी से बात की थी, न्यूमरोलॉजी कराया मेरे लिए, मैंने समझा क्योंकि मेरे को क्लास का बहुत मन था, मेरे को ज्वाइन भी करने का बहुत मन था, बट मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। बट इतने सारे कमेंट्स सुन के इन लोगों के कि अच्छे मेंटोर हो आप और बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, तो मैं आज चेक कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि एक बार आप ट्राई करो, तो अगर मेरा मन तो बहुत है न्यूमरोलॉजी में, तो अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी आपके साथ रश्मि जी।
Thank you. Yeah. Thank you so much, Ritika ji. Thank you for a nice introduction and your kind words. And definitely, yes, Ritika ji, embryology is a passion. It's not it's a profession, but उसके पहले ये एक passion है. ये एक लगन है, ये एक एक तरह का dedication है towards occult. तो डेफिनेटली यस, अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट हो, मे यू ज्वाइन मी, आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी मेंटोर को ज्वाइन कर सकते हो, बट बिलीव मी, आप इस फील्ड में अगर आते हो, प्रोफेशनली भी आप बहुत अच्छा करते हो एंड उसके साथ साथ पर्सनली भी आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम यू टेक अ डिसीजन कि आपको न्यूमरोलॉजी में थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट है तो उसमें आपको आगे बढ़ना है कि नहीं. थैंक यू सो मच. सो कमिंग टू संचिता अग्रवाल. Sanchita Agarwal, ma'am, can we just see you and have your introduction? Yeah, she's a child. Okay, hello, Sanchita. Hi, my name is Sanchita Agarwal. I'm a student, so I've always been passionate about numbers and all the other related fields. So I got a reference from one of my mother's friends. So I thought of giving it a try. Yeah, most welcome, Sanchita. It's nice to see youngsters joining, and believe me, it's a very nice profession. Apart from your usual professions, it always gives you an add-on. Even by education, I am a CMA, a cost management accountant with a certificate of practice. And I also used to work for international banks. But when numerology came into my life, I pursued it as a full-time profession. Obviously, it gave me a boost to my already pursued profession. Definitely, it adds a spice to your life, a feather in your cap, rather, I would say. So thank you so much, Sanchita. Thank you. Yeah, most welcome. And who's left? Vinu ji, Vinu Juneja. Vinu Juneja ji, can we please see you and have your introduction? हाँ जी, हेलो मैम. Hello. मैं वीनू जुनेजा, मैं पचमढ़ी मध्य प्रदेश से हूँ और वैसे मैं एक हीलर हूँ और करुणा रेकी वगैरह भी करती है. ध्यान, मैं मेडिटेशन से जुड़ी हूँ तो ध्यान प्रचार करवाती हूँ, वो सब काफी सिखाती रहती हूँ. मैं जस्ट मदर अर्थ की सेवा करना है ऐसा करके. और मुझे न्यूमरोलॉजी में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट है, पर कभी मौका नहीं मिला, हो नहीं पाया. तो अभी कुछ दिन पहले मेरी भांजी ने मुझे लिंक दिया आपका कि ये स्टार्ट होने वाला है, तो आज मुझे वो लिंक मिला तो मैंने ज्वाइन किया. So Thank you nice. so much. बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया एंड यू आर अ हीलर. इट्स सो नाइस कि हमारे ग्रुप की एनर्जी इतनी पॉजिटिव एंड इतनी अच्छी है, हमारे ग्रुप की ऑरा. So many healers are joining. Ritik Ishan is a healer. Now you are the another one who is a healer. Even I am a basic pranic healer and a soul pursuer. Thank you so much, Vinu ji, for joining. Now I can see Mitu Bhaiti over here. Hello, Mitu ji, how are you? Please introduce yourself. Please mic को unmute करिए, Mitu ji. Yeah, I'm absolutely fine. Yeah, please introduce yourself, Mitu ji. Recently हम सब मिले हैं, लेकिन अभी और सबके ग्रुप को भी आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है. मैंने भी न्यूमरोलॉजी किया है और मैं भी उसी पाथ पे हूँ, तो उसी से रिलेटेड आया था तो मैं पूरी ज्वाइन करती हूँ. Okay, nice. Very nice to know that. It's nice to see already जो लोग न्यूमरोलॉजी फील्ड में हैं, उन लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. Thank you so much, Mitu ji, for joining. Preeti Thank ji, you. Preeti ji, please introduce yourself. Hello, I'm Preeti. Hello. Hello. मेरा रश्मि दी से कुछ दिन से कांटेक्ट है. She is helping me a lot. Thank you, Preeti ji. आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, like you can mention that. आपको न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी सीखना भी चाहते हो? हाँ, बिल्कुल. You have taken consultations from me, from yourself and your entire family. I remember. आप न्यूमरोलॉजी सीखना भी चाहते हो, इसलिए वो interested in this demo class, right? Yes, yes. Okay. Thank you so much, Preeti ji, for joining. एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे मेरे टीचर एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड प्रदीप सिंगला जी भी है. तो भैया, आई वुड आस्क यू टू ओपन योर कैमरा इफ यू आर फ्री. अगर आप अभी फ्री नहीं हो तो आप चैट बॉक्स में दे दो, मैं फिर आपको लास्ट में आपसे बात करवाऊंगी सबकी. आई थिंक भैया इज नॉट देयर ऑन शोर. कोई बात नहीं है फ्रेंड्स. सो सिंस हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक से ज्वाइन किए एंड देयर येट कुछ और लोग भी हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो फाइन, वी हैव गिवन इनफ टाइम. सबको ज्वाइन करने का हमने बहुत सारा टाइम दिया है, तो अब हम सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं.
And जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, for them you please see the recording and get back to me in case you have any doubts. So friends, there are many who know me and there are many who don't also know me. So for them, I am Rashmi at Saraf, an astronumerologist. I am a consultant and a trainer. I give personal consultations, business consultations, all kinds of consultations related to numerology. I'm also a trainer. I train in various modalities of numerology, starting from Losho Grid, Vedic numerology, Chaldean numerology. And friends, believe me, it's an ocean of gems and jewels, I would say. Occult science is a huge field. It's a huge ocean. उसमें बहुत सारी चीजें आती है. Astrology, numerology, tarot card reading, palmistry. उस तरह से बहुत सारी चीजें उसमें समाई हुई. न्यूमरोलॉजी उसका एक हिस्सा है. न्यूमरोलॉजी ऑल्सो नोन एज अंक ज्योतिष, यानी कि अंकों का ज्योतिष. ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है. बहुत सारे क्वेश्चंस पहले हमारे पास बिगिनिंग में आते थे. व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? So I would clarify that numerology is a part of astrology. Astrology का ही एक हिस्सा है. Astrology में जो सिर्फ अंकों वाला पार्ट हम लेते हैं, that is numerology. तो आज हम करेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा सेशन. न्यूमरोलॉजी बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, which is difficult to cover in such a short time. मगर I'll cover a small session on numerology कि न्यूमरोलॉजी आखिर में है क्या और कैसे न्यूमरोलॉजी हमें बेनिफिट करता है, and how can we get different aspects of numerology, you know, touching our lives in different ways. So basically numerology, as we all know, is the language of numbers. It is also the science behind the numbers. I would say हर नंबर कुछ कहता है. जैसे हम इंसानों की एक यूनिक लैंग्वेज होती है, एक यूनिक भाषा होती है. पशु पक्षियों की होती है, बर्ड्स की होती है, प्लांट्स की होती है. All the living things on this earth, they have the unique different language. In the same way, numbers also speak their own language and they make us understand many things which are hidden in our date of birth. Numerology basically works on many things. We can take many data and check a person's horoscope or a numeroscope. But yes, numerology, the base of numerology is our date of birth. A date of birth is a very important tool for any person. It is a divine gift from God. It is the day when a person was sent on earth by the divine. किसी भी इंसान के लिए उसका जन्मदिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इंसान बहुत बूढ़ा भी हो जाएगा ना, 100 इयर्स का भी हो जाएगा तो बहुत प्राउडली बोलेगा आज मैं 100 इयर्स का हो गया हूँ, आज मेरा बर्थडे है. That important is a date of birth for each one of us. So friends, इसी date of birth में छिपे हुए हैं बहुत सारे राज. हमारी strengths, हमारी weaknesses, हमारा past, present and future. Everything is there hidden in this date of birth. Numerology gives us that strength, those powers, and the understanding of the language. How can we decode this state of birth and predict about the future, understand the present better, and of course, yes, we can learn lessons from our past. किस समय में कौन से planet की ग्रह दशा आई थी जिसकी वजह से past में हमें ये problem हुई थी. So we can always relate it to the present. कि yes, present में ये हमारे साथ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, and future में ये चीजें हमारे साथ वापस से repeat होगी या इससे बेहतर होगी या हो सकता है इससे कम बेहतर हो. That way. Human beings में भी हम अलग अलग languages बोलते हैं, अलग अलग states के हिसाब से we have different languages and we speak different languages. Whenever we cross a state and we go to some other state, जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं और हम साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है. We tend to understand, we don't tend to understand their language, their South Indian language. So we use a common language as English or part of Hindi. तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रही वो लैंग्वेज? Because we don't know how to decode that language. लैंग्वेज वो भी अपनी बोल रहे, वो भी अपनी बात वही कह रहे हैं, हम भी वो बात वही कह रहे हैं. But each one of us, we don't understand each other's language. Because we don't know how to decode that language. In the similar way, date of birth सबकी अलग अलग बात बोलती है, but we don't know how to decode that date of birth.
and hence we fail to understand the language of numbers. So this science of numerology teaches us how to understand this language of numbers and how to use it for our benefit as well as for others' benefit. So friends, whoever are walking on this path of numerology and whoever are willing to walk on this path of numerology, I must congratulate you. You have taken the best decision of your life. ये बहुत बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, पैशन है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ डेडिकेशन. ये ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने पढ़ लिया और आपको आ गया. इट्स अ कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट रिसर्च. आज आपके पास जो नॉलेज है, यू कॉन्स्टेंटली हैव टू ऐड ओवर इट. यस, so friends, let me take all of you on a short journey on numerology. So just give me a second to share the screen. Yes. So as I said, हर नंबर कुछ कहता है, हर नंबर की एक भाषा होती है. So numerology, basically the most important tool of numerology, as I said earlier, is our date of birth. Our date of birth again is a constellation of digits. It's a constellation of numbers. Numbers हमारे क्या होते हैं? Numbers हमारे होते हैं 1 से लेकर 9 तक. ये जो numbers होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये actually सिर्फ numbers नहीं है. These are the different planets which govern our number system and of course which govern the entire occult. Astrology में हम जिन planets की बात करते हैं, जिन ग्रहों की बात करते हैं, वही ग्रह, वही planets numerology में भी होते हैं. Only that उनके जो denoting numbers है, denoting digits है, we need to understand that. The entire number system is ruled by 9 numbers, 1 से लेकर 9 तक. एक नंबर जैसे सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का है, नंबर 3 is Jupiter और the देवगुरु, नंबर 4 is राहु, नंबर 5 is Mercury और the बुध ग्रह, नंबर 6 is Venus और the दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नंबर 7 is केतु, नंबर 8 is Saturn और शनि देव, नंबर 9 is मंगल. तो जो हमारा एंटायर नंबर सिस्टम है, ये 1 से लेकर 9 के ऊपर टिका हुआ है. हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, चाहे वो पर्सन सिंगल डे में पैदा हुआ हो, सिंगल डे में बॉर्न हुआ हो, या फिर कंपाउंड डेट पे बॉर्न हुआ हो. सिंगल डेट पे जो लोग 1 से लेकर 9 तारीख के भीतर बॉर्न होते हैं, दे आर द पीपल हु आर बॉर्न ऑन सिंगल डे. किसी का बर्थडे हो सकता है 1st of January 2004. So the person is born on 1st of any month, or a person may be born on 15th of January 2004. तो उनका जो बर्थडे है, it comes on 15th, which is a compound number. इस compound number को फिर से हम break करके single number पे लेके आते हैं. तो 15, if we add 15, 1 and 5, it comes to number 6. So we say the basic number of the person is number 6. Numerology basically is governed by 3 major numbers: the basic number, destiny number, and of course the name number. The 4th number, which is again very, very important, is the mobile number of the person. Apart from that, all the numbers coming in a person's life are equally important. बहुत ज़्यादा important है. हमारी जिंदगी numbers से घिरी हुई है. We all are governed by numbers. We all are ruled by numbers. Apart from our date of birth, we have our name number, our cell number, house number, vehicle number, Aadhaar card number, student number, ID card number, and so on. As soon as a person is born, is given his date of birth, constellation of numbers, is given a name that again has a numeric value. He grows up, he goes to school, he gets a vehicle number, a car number or a bus number, and of course a class roll number. वो और बड़ा होता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, उनके पास
नंबर्स की भरमार रहती है। तो क्या ये सारे नंबर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? यस ऑफ कोर्स, ये सारे नंबर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर इन सब में जो 4 नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, द बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर एंड ऑफ कोर्स द मोबाइल नंबर। बेसिक नंबर बेसिकली इज द डे ऑन विच द पर्सन इज बोर्न। जैसा कि मैंने कहा, जिस तारीख को, जिस डे को आप बोर्न हो रहे हैं, किसी महीने की 1 तारीख को अगर आप बोर्न हो रहे हैं तो आपको बेसिक नंबर होता है 1। अगर आप किसी महीने की 15th को बोर्न हो रहे हैं तो वी विल एड अप 1 + 5 इट कम्स टू 6। बेसिक नंबर आपका हो गया 6। ये सब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वर्बली so that you get a brief overview of the same. Destiny number again is the sum total of all the digits coming in your date of birth. Date of birth अगर हमारा है 1st of January 2004, all the digits compounded together is your destiny number. Destiny number is a number which denotes कि person की destiny कैसी होगी, उसका life path कैसा होगा, whereas basic number वो इंसान खुद है, वो पर्सन कैसा है, नेचर कैसा है उसका, दैट इज द बेसिक नंबर। देन कम्स आवर नेम नंबर। ईच अल्फाबेट हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू। मेरा नाम रश्मि एस सराफ है, सो ईच अल्फाबेट इज हैविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो एवरी अल्फाबेट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जब हम उसका सम टोटल करते हैं तो पूरे नाम का जो वैल्यू आता है, दैट इज योर नेम नंबर। एंड कमिंग टू द सेल नंबर, ऑफ कोर्स cell number again is a very important constellation of number in each one's life. मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारे लिए अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज मोबाइल नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी नंबर। हो सकता है कि आपके सेल पे रश्मि के नाम से 4 कॉन्टैक्ट्स हो। अब हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि इसमें से रश्मि एस सराफ कौन सी थी, जिसने उस दिन न्यूमरोलॉजी का वेबिनार लिया था, जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट? ऑफ कोर्स बाय माय मोबाइल नंबर, बिकॉज मोबाइल नंबर सबका यूनिक होता है। एक डेट पे 2 से ज्यादा इंसान बॉर्न हो सकते हैं, 2 इंसानों का सेम नेम हो सकता है, बट मोबाइल नंबर, हैव यू एवर हर्ड, क्या आप लोगों ने कभी सुना है 2 इंसानों का सेम मोबाइल नंबर है? नहीं सुना है ना कभी भी। चाहे फिर वो किसी भी ब्रांड का मोबाइल वो यूज करते हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल वो यूज करते हो, दे मे हैव अ वोडाफोन कनेक्शन और एन आइडिया कनेक्शन, एयरटेल और एनीथिंग एल्स, मोबाइल नंबर कभी भी 2 जनों का सेम नहीं होता है। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कैसे नंबर्स हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। यस, so how do we say how important is numerology for us? Because we get questions, डेस्टिनी, भाग्य जब इंसान का लिखा हुआ है तब कैसे न्यूमरोलॉजी हमें वहां पे हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, आई वुड से न्यूमरोलॉजी वर्क्स लाइक अ मैथ डिपार्टमेंट। मौसम विभाग, न्यूमरोलॉजी कभी भी आपके लाइफ में होने वाले इवेंट्स को रोक नहीं सकता है, लेकिन यस, न्यूमरोलॉजी आपको ये बता सकता है कि कब आपकी लाइफ में क्या इवेंट हो सकता है, कौन सा चीज कब होने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से अवेयर रहें, सावधान रहें, एंड यस, आपको रेमेडीज का सपोर्ट मिले ताकि आपका वो इवेंट छोटा में टल जाए। आपके सर पे बड़ा पत्थर गिरने वाला है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ रेमेडीज सपोर्टेड बाय न्यूमरोलॉजी, वो बड़ा पत्थर एक छोटे कंकड़ के फॉर्म में आपके ऊपर गिर रहा है। सो यू आर लीस्ट हर्ट बाय इट, आपका कम से कम नुकसान हुआ उसी में। मौसम विभाग हमारे लिए सेम चीजें करता है। मैथ डिपार्टमेंट कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं बारिश को रोक सकता हूँ, बारिश आनी है वो आएगी, बट यस, मैथ डिपार्टमेंट हमें गाइड करता है। बारिश अगर तेज है तो आपको बाहर जाना है कि नहीं जाना, पहली बात।
बाहर जाना है तो कब इतनी तेज बारिश होगी कि आपको अम्ब्रेला लेके जाना है, या फिर इतनी सीवियर होगी कि आपको जाना ही नहीं है बाहर, या फिर इतना सीवियर है कि आमफान की तरह तूफान आने वाला है तो आपका सब कुछ उड़ जाएगा। तो आपको घर में रह के भी बहुत सेफली रहना है, प्रिकॉशंस के साथ रहना है। न्यूमरोलॉजी हेल्प्स अस इन द सेम मैनर, न्यूमरोलॉजी गाइड्स अस इन द सेम मैनर। राधा जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी इज द जीपीएस ऑफ आवर लाइफ। हम किसी अननोन डेस्टिनेशन पे हमें जाना होता है, रास्ता हमें नहीं पता होता है, उस समय कौन हमारी हेल्प करता है? हमारे फोन का जीपीएस, हमारे गाड़ी का जीपीएस, गूगल हेल्प्स अस। यस, सो न्यूमरोलॉजी इज लाइक दैट गूगल फॉर अस, लाइक जीपीएस फॉर अस। लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वी डोंट नो। We all are human beings and we all have a karmic balance. We are sent on earth to finish off that karmic balance. So we don't know life में अगले पल क्या होने वाला है। आज सुबह आप में से कितने जनों ने सोचा था कि आज आप आफ्टरनून में न्यूमरोलॉजी का क्लास अटेंड करोगे? हो सकता है आप में से बहुत जनों ने सोचा होगा, बहुत जनों ने ऐसे भी सोचा होगा, देखते हैं उस टाइम पे टाइम होगा तो कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट डिसाइड किया होगा। मीतू बायती has raised her hand. Yes, मीतू जी। नहीं, मैंने आपने पूछा ना कि हाँ कितने लोगों ने सोचा सुबह करने का, तो वही आपका आया था फोन, तो मैंने सोचा था मुझे करना है आज हाँ जी, ज्वाइन उसी के लिए। ओके, सो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सो वही बात है, तो न्यूमरोलॉजी इज द जीपीएस ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और हम खुद अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे, मैं क्यों करूं न्यूमरोलॉजी में, अच्छा वाला काम कर रहा हूँ। बिकॉज आप में से बहुत सारे जन प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे जन होम मेकर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे जन बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, बिजनेस मैन हो सकते हैं। तो आपको न्यूमरोलॉजी क्यों करनी चाहिए? क्यों आपको आप कहेंगे मुझे पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं क्यों एक और सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करूं? देयर आर वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, व्हाई शुड वी गो फॉर न्यूमरोलॉजी? So here's where numerology touches each and every part of your life. Career, health, wealth, relationship, जो हमारे लाइफ के 4 major aspects है. Yes, you can seek help of numerology on these 4 major aspects. उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जहां न्यूमरोलॉजी हमारी मदद करता है। नई गाड़ी लेनी है, seek the help of numerology. You want to change your city for a foreign settlement, change your country for a job, anything like that, seek the help of numerology. Career counseling, student है, ये चीज लेना है कि ये लेना है, seek the help of numerology. ऐसे बहुत सारी जगह है जहां numerology आपको हेल्प करता है। Yes, moving forward, अब आता है क्वेश्चन, numerology में भी हमें कौन सा numerology करना चाहिए? Because our Indian market is flooded with different kinds of numerology. बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के मोडालिटीज हमारे सामने अवेलेबल है, like as I said, लोशो ग्रिड, शाल्जियन, वैदिक न्यूमरोलॉजी, and you can all see on the screen आब्राकाडाब्रा, पाइथागोरियन, कबाला, एंड इसके अलावा और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के मोडालिटीज अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं बोलूंगी अब न्यूमरोलॉजी किसी भी मोडालिटी से करिए, आप एक ही जगह पे पहुंचेंगे। इसको डिपिक्ट करने के लिए मैंने इस पिक्चर का सपोर्ट लिया है। इट्स लाइक अ एलिफेंट एंड फ्यू पीपल, ऑल ऑफ देम आर ब्लाइंड, दे डोंट हैव विजन, वो आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जब पूछा कि हमें एलिफेंट चाहिए, हमें एलिफेंट को फील करना है कि एलिफेंट कैसा लगता है, तो उनको एलिफेंट के पास लेके गया तो उन्होंने एलिफेंट के डिफरेंट पार्ट्स को अपने अपने हाथों से फील करने की कोशिश की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी ने उसकी दांत पकड़ लिए, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने पाँव, तो किसी ने पेट, तो किसी ने पूंछ, अलग अलग पार्ट्स को उन्होंने फील किया और उनके हिसाब से वही एलिफेंट था, बिकॉज उनके पास विजन नहीं था। यस, तो हमारे लिए भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह से है। न्यूमरोलॉजी को कहीं से भी आप जाओ, यस ऑफ कोर्स दैट इज न्यूमरोलॉजी, वो आपका विजन है, वो आपका स्टाइल है, वो आपका तरीका है न्यूमरोलॉजी को वैसे फील करने का, देखने का, समझने का। बट यस फ्रेंड्स, ऑल काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी लीड यू टू द सेम पाथ,
same destination. Yes. Open request to all the participants. आप लोग को किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, all of you are free to raise hands, ask a question in the chat box, and if I'll find it necessary, I'll also give you the option to unmute and ask the question. Yes, and I hope all of you are enjoying. So please type in the chat box for me to understand कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आप लोग enjoy कर रहे हो ना. Not even a single answer in the chat box. इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा मेरी बात को. दीदी सब आपका बात को इतना ध्यान से सुन रहे हैं ना, इसीलिए कोई बोला नहीं, क्या बोले. ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच बोलने के लिए. बिकॉज हम भी तो चाहते हैं ना कि हमको रिस्पॉन्स मिले, हमको ये समझ में आए कि मेरे पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं ना, इसीलिए हम पूछ लिए. थैंक यू सो मच. ओके, नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट ऑफ न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी हमें एक विजन तो देता ही है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, एंड ऑफ कोर्स पास्ट का अवेयरनेस भी हमें देता है. न्यूमरोलॉजी हमें एक जीपीएस है हमारे लाइफ का. उसके साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी कैसे हमें हेल्प करता है? न्यूमरोलॉजी आल्सो हेल्प्स अस गेटिंग अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन आवर लाइफ. जब हम न्यूमरोलॉजी करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, या फिर कंसल्टेशन लेते हैं हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट. यस, बिकॉज इट्स अ साइंस, इट्स अ मैथमेटिक्स, नॉट एवरीवन कैन बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं बिल्कुल, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी सीखते नहीं है, वो कंसल्टेशन लेने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आते हैं. तो न्यूमरोलॉजी कैसे उन दोनों को हेल्प करता है? जो लोग सीख के न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए उनको कैसे हेल्प करता है, और जो लोग कंसल्टेशन लेके अपने लाइफ को शेप अप करना चाहते हैं उनको कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प करता है? दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो यस, पहले आई विल टेल यू कि फॉर पीपल who take consultations from people like us, from numerologists. Of course, people come to occult science practitioners या astrologers, numerologist के पास एक इंसान तभी आएंगे जब उनके लाइफ में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही होगी. अच्छा भला इंसान, आपकी फीस चाहे कितनी भी कम हो, आपकी फीस चाहे 500 रुपीज हो, चाहे आपकी फीस 5000 रुपीज हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कभी भी कोई बिना प्रॉब्लम के सिर्फ ऐसे ही जस्ट चेक करने की लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा ना, कभी नहीं जाएगा. दैट इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी. जब तक आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा, पीपल डोंट टेंड टू गो टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट और एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर. इट कुड बी एन एस्ट्रोलॉजर, कुड बी अ टैरो कार्ड रीडर और अ पामिस्ट. आप उसके पास नहीं जाएंगे. तो यस, जब आप किसी ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी अगर आप जाते हैं, डेफिनेटली वो आपकी कंसल्टेशन, आपकी काउंसलिंग करने के बाद में दे मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कब तक चलेगी, कब वो सॉर्ट आउट हो सकती है. दे गिव यू रेलेवेंट रेमेडीज फॉर द सेम. रेमेडीज ऑल्सो आर 4 डिफरेंट काइंड्स. पूजा की रेमेडीज होती है, यंत्रा की रेमेडीज होती है, क्रिस्टल्स की रेमेडीज होती है, एंड डोनेशंस की भी रेमेडीज होती है. They give you different kind of remedies as per your convenience, and yes, your life starts moving at a better pace and you get a breather in your life. जैसे हम कहते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका आ गया आपकी लाइफ में. परेशानियों की तपिश थी, परेशानियों की गर्मी थी आपकी जिंदगी में, ठंडी हवा का झोंका आ गया, एसी चल गया. 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में एसी की हवा लगी आपको, तो आपको एक टेम्पररी रिलीफ उस टाइम के लिए मिलता है. एंड यस, ऑफ कोर्स आपको समझ में आता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है या उस समय आपको क्या करना है, जो ना सिर्फ उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं, आगे जाके भी वो प्रॉब्लम आपको कम से कम इफेक्ट करे या परेशान करे, उसका रास्ता, उसका जीपीएस आपको वो ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर देता है. यस, so it also results in getting prosperity in your life. Second situation कब होता है? When you yourself want to learn numerology and you want to heal people via numerology.
because healers in the group can truly understand numerology is also a kind of healing. कोई पर्सन बहुत परेशान होके आया है आपके पास में, आप उसकी बात सुनते हो, काउंसलिंग करते हो, उनको कंसल्टेशन देते हो, उनको अवेयरनेस देते हो, उनका फ्यूचर बताते हो, उनके संग जुड़े हुए रहते हो वाया रेमेडीज. Of course, it's a kind of healing. Yes. So people who want to learn numerology, of course, yes. Numerology is a passion, a dedication to help people. उसके साथ ही साथ you also are getting remunerated for the same. आप अपनी फीस चार्ज कर रहे हो. So you also develop abundance and prosperity in your own life. Yes. An occult is a divine gift from God. Not everybody can practice occult. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो occult सीख तो लेते हैं, किसी भी तरह का occult, किसी भी तरह का modality सीख तो लेते हैं, लेकिन उसको practice नहीं कर पाते हैं. So friends, if you are learning numerology and you are able to practice the same, feel you are the most blessed person under the sun. The divine has chosen you to help people, to heal people, to understand their lives. आपकी कितनी सारी परेशानियां आपके अच्छे कर्मों की वजह से वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है. जब आप औरों की हेल्प करते हो, आपकी अपनी परेशानियां वहीं पे खत्म हो जाती है. That is also a kind of abundance you are getting in your life. The blessing of good wishes from others. औरों की दुआएं आपको मिल रही है, and उसके साथ ही साथ of course the remuneration which you are getting, the money which you are getting, that also gives a lot of confidence, and of course yes, you are also supporting yourself financially. So जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, it is a kind of constant investment. आप सोचो कि मैंने कोर्स कर लिया एंड मेरा वहीं से न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस शुरू हो गया, और उसके बाद मुझे अपने आप को अपडेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. I would say that is a myth. जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक नल है जिसमें ये कॉइन्स भरे हुए हैं. तो आप ये कॉइन एक बार में, एक ही कॉइन इस जार में गिर रहा है ना, एक बार में सारे कॉइन तो इस जार में गिर नहीं सकते. इसमें छोटा सा प्लांट है, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप ये कॉइन्स उसमें गिरा रहे हो. न्यूमरोलॉजी में इसी तरह से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट्स आपको करते रहना पड़ता है. इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ 3 kinds: time, energy and money. You do a course in numerology, start earning from that, and you can support your own education. Numerology is that fantastic. आप एक छोटा या बड़ा कोई भी कोर्स करते हैं, you can of course start earning from that course. जैसे कि किसी भी पौधे को हमें सींचना पड़ता है सालों साल ताकि वो पेड़ बने, उसी तरह से numerology is also a kind of small sapling which you are sowing in the seeds of your own mind, and you have to constantly nurture it by your hard work, your time, energy, and of course small investments. So there's where numerology helps you get more abundant and more prosperous. Yeah. So coming to the next slide. Yeah. जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग से शेयर किया था, डिस्कवर द मैजिक ऑफ नंबर्स. मैजिक ऑफ नंबर्स हम बहुत सारी जगहों पे देख पाते हैं. जिसमें ये बहुत सारी चीजें हैं: डेट ऑफ बर्थ, नेम स्पेलिंग नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर. ये कुछ हमारे ये 6 जो टॉपिक्स है, ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं. डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम उसको, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड. नेम स्पेलिंग नंबर, जो नाम हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमारा नाम दिया लाड चाव के साथ में, बहुत ज्यादा मतलब इमोशंस के साथ में. तो हमारा नेम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स द आइडेंटिटी बाय विच यू नो योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड नोज यू. मेरा नाम रश्मि है, हो सकता है सेशन में और भी रश्मि नाम के लोग हो, लेकिन फिर भी कोई अगर रश्मि बोलेगा तो एक बार मैं घूम के देखूंगी मेरा नाम कोई बुला रहा है. योर नेम इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जब से हम सुनना शुरू करते हैं, हम सुनते हैं कि हमें किसी नाम से कोई बुलाया जाता है. We are being addressed by a particular name.
It could be nickname, Sonu, Monu, Chiku, Piku, कुछ भी हो सकता है. Or it could be a single name which you are called for. That name sinks in our aura years after years. तो आपका नाम आपके लिए बहुत ज्यादा important role play करता है. So आपके नाम की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसकी जो एनर्जी है, आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? Yes. So name spelling number is a very important aspect of numerology. It's also known as name numerology. मोबाइल नंबर, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को पहले. मोबाइल नंबर क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंसान सुबह सो के उठेगा, भगवान को बाद में देखेगा, पहले खोजेगा मेरा मोबाइल कहाँ है. राशन घर में खत्म हो गया, 1 मिनट के लिए चलेगा, मोबाइल का डेटा खत्म नहीं होना चाहिए. हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाएगा, इनकेस किसी का मोबाइल अगर उस पर मिसप्लेस हो गया, उसको नहीं दिखाई दिया, तो बच्चे एकदम आफत मचा देंगे अगर उनके पास मोबाइल नहीं है. ईच एज ग्रुप 5 से लेकर 5 इयर्स की एज से लेकर 55 इयर्स की एज तक में, कोई भी एज ग्रुप हो, मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. देन कम्स अवर हाउस नंबर. घर, सर पे छत, घर, हमारा घर, हमारे सपनों का घर कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो उसका नंबर भी ऑफ कोर्स यस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. बिकॉज द हाउस इज द प्लेस वेयर द फैमिली लिव्स. वी इन्वेस्ट द मेजर पोर्शन ऑफ आवर इनकम इन द हाउस. तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द व्हीकल नंबर. जो गाड़ी हमारी, हम उसको रोज यूज करते हैं, क्या तो हम उसको खुद राइड या ड्राइव करते हैं या इस शॉफर रिडन, लेकिन वो गाड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एवरीडे लाइफ. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू बैंक अकाउंट नंबर. जहाँ हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट सिंक्ड होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं, वो होता है हमारा बैंक अकाउंट. इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इन सब के बारे में जब हम क्लास करेंगे बाद में हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे इनके बारे में. अभी आई एम गोइंग ऑन अ शॉर्ट फॉर्म ऑन दीज टॉपिक्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नंबर सिस्टम. जो नंबर्स हमारे हैं, जैसे कि मैंने बताया, पूरा नंबर सिस्टम 9 नंबर्स पे टिका हुआ है, 1 से लेकर 9 तक. तो इन 9 नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी. उसके बाद आई विल बी कमिंग टू द बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर. हम कैसे निकालते हैं और हम कैसे उसकी ग्रिड बनाते हैं. नंबर्स के बारे में, इनके एट्रीब्यूट्स और इनके जो ट्रेड्स है बहुत सारे हैं. मैं आज एकदम शॉर्ट में आप लोग को कराऊंगी so that you can understand. जब मैं ग्रिड बनाऊंगी तो आप लोग समझ पाओगे कि किसका नंबर कहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान वैसा है. जो नंबर हमारे बेसिक एंड डेस्टिनी में आता है, वो नंबर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. A person is ruled by those numbers. Those numbers play a very important role in their lives. उसके अलावा और जो नंबर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो होता है ना, गाड़ी होती है, उसमें एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है. गाड़ी में और भी लोग होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं. दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट the driver and the conductor, these two people are the most important persons in that vehicle. उसी तरह से हमारा बेसिक नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर है. So before coming to them, I'll just take on a brief journey on the 9 numbers and their attributes and their traits. Yes? अभी तक से किसी को कोई डाउट था? Okay, fair enough. I assume कि किसी का कोई डाउट नहीं था. I can see someone typing in the chat box. Okay, thank you so much, Ritika. Coming to number 1. Number 1, the first number of the number plane. It is ruled by the planet Sun. It is also known as the father. Number 1 are the people who are the pioneers in doing anything. They are born leaders, very confident, at the same time very authoritative also. Angry, authoritative, short-tempered. सूर्य कैसा होता है? सूर्य बहुत गर्म होता है. वैसे ही होते हैं 1 नंबर वाले लोग, बिल्कुल सूर्य की तरह गर्म. जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है. लीडरशिप क्वालिटीज. सबसे पहले संसार में सूर्य उदय होता है, उसके बाद इस संसार में रोशनी आती है, जिंदगी आती है, लाइफ आती है संसार में.
ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, कोई भी काम को करने में पहले नंबर पे रहेंगे, लेकिन गुस्सा भी इनको सबसे पहले आएगा, सूर्य की तरह। दे आर ऑल्सो नोन एज अ फादर, वाई? बिकॉज फैमिली के जो सबसे मेन हेड होते पापा होते हैं। 99% फैमिलीज में फादर इज द वन हु इज ruling the family, who is taking care of the entire family. He is the HOD of the family. So generally people who are ruled by number 1, they are the ones who take most of the responsibilities. Now who are these people? अब ये कौन लोग हैं जो एक नंबर से रूल्ड होते हैं? ये कौन सी डेट्स को बॉर्न होते हैं ये लोग? People who are born on the dates 1, 10, 19 and 28th of any month, they are the people who are ruled by number 1. 1 to 1 है, 10 को 1 plus 0 it comes to 1. 19 again 1 plus 9 it comes to 10. 10 को फिर 1 plus 0 it comes to 1. इसी तरह से आपको जो कंपाउंड डेट्स होगी उसको शॉर्ट करके आपको 1 पे लेके आना है, सिंगल डिजिट पे लेके आना है। जो नंबर आएगा वो पर्सन उसी से रूल्ड होता है। 28, 2 plus 8 it comes to 10. 1 plus 0 again comes to 1. Yes, clear I believe. So these are the people who are ruled by sun. तो इनके ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हर एक इंसान में दोनों होगा। इसके बारे में अब मैं आप लोग को और डिटेल से पढ़ाऊंगी जब आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे तब। अभी बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच आई एम टेकिंग इट ऑन अ शॉर्टर नोट। यस, एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। एक नंबर अगर फादर है, 2 नंबर क्या होगा? मदर, माँ। राजा के बाद कौन आएगा? रानी। एक नंबर क्या है? फादर है, 2 नंबर माँ है। एक नंबर किंग है, 2 नंबर क्वीन है। नंबर 2 रूल्ड बाय मून। माँ कैसी होती है? बहुत लविंग एंड केयरिंग होती है। एंड सो आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 2, दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। एट द सेम टाइम रानी है तो शी इज वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, caring and loving at the same time, very very sensitive. So are the people who are ruled by number 2. बिल्कुल छुई मुई जैसे, उनको कोई कुछ मत बोलो, जहां किसी ने कुछ बोला वहां पे एक रिएक्शन आ जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। कोई भी चीज उनको बहुत जल्दी टच कर जाती है। माँ है, जैसे हम कहते हैं माँ सब जानती है, बिकॉज मदर्स आर वेरी इंट्यूटिव। घर से बाहर भी बच्चा अगर बदमाशी करके आता है, मम्मी को घर बैठे समझ में आ जाता है आज तो ये कीचड़ में खेल के आया है, भले उसके कपड़े उतने गंदे हो चाहे नहीं हो। बच्चा अगर झूठ भी बोलता, माँ बोलेगी हमको सब पता है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, हमको सब पता, ठीक है जाओ अंदर जाओ। यस, people who are ruled by number 2, they are very very intuitive as well, but at the same time they are also loving and caring like mother. People who are born on the 2nd, 11th, 20th and 29th of any month, they are the people who are ruled by number 2, and they are ruled by the planet moon. They also have the attributes as that of mother, also of queen. Yes, 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर हो गया जुपिटर, उनके देव गुरु। एक बहुत बड़ा राज्य है, किंगडम है, वहां पे राजा है, रानी है। उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा? उनके कुल गुरु या उनके आचार्य इंपॉर्टेंट है। शिक्षा कौन देगा? डिसीजंस कौन लेगा? कुल गुरु देंगे। राजा किसकी बात मानेंगे? कुल गुरु की बात मानेंगे। यस, राजा किससे सलाह मशवरा करेंगे? कुल गुरु से करेंगे। सो कुल गुरु, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट जुपिटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द देव गुरु। सिंस वो गुरु है तो वो नॉलेजेबल होंगे, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। रूल्ड बाय नंबर 3। एट द सेम टाइम ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, बिकॉज उनको राजा के सामने नए नए आइडियाज देने होते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी अगर वो एक ही डिसीजन हर बार एक ही तरीके से देंगे, राजा बोलेगा अब तो हर बार एक ही बात बोलते, कोई वैरायटी नहीं है आपकी बात में। तो दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, सोच समझ के बात करते हैं, अलग अलग तरीका से बात बोलना उनको बिल्कुल आता है। सिंस वो कुलगुरु है, आचार्य है, तो डेफिनेटली उनके पास पावर एंड पोजीशन है।
Power position knowledge makes a person egoistic. People who are ruled by number 3, they are also egoistic because of the same quality, because they have power position and knowledge. And उन्होंने इतने सालों की मेहनत करके ये पोजीशन पाई है. They are on a higher position. जब इंसान बहुत हायर पोजीशन पे होता है तब क्या होता है? मैच्योर्ड होता है. People who are ruled by number 3, they are also very matured people. Now, who are these people who are ruled by number 3? People who are born on the 3rd, 12th, 21st, and 30th of any month. They are the people who are ruled by number 3. These people, since they are very matured, हम उनको एक बूढ़े आदमी के साथ भी कंपेयर करते हैं. तो जैसा कि हम कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान, जैसे बच्चे लोग जिद करते हैं, बूढ़ा आदमी भी वैसे ही कभी कभी जिद पे आ जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 3 वाले लोगों में चाइल्डिश एनर्जी भी होती है, किडिश एनर्जी भी होती है उसमें. बच्चों की तरह कभी कभी वो जिद पे भी आ जाते हैं. So we also say they have scattered energy in themselves. That is a negative trait of number 3. हर planet का एक positive और negative trait दोनों होता है. So yes, that is a negative trait of number 3. Otherwise, they are very, very knowledgeable people and very, very matured people who are very close to the king. Yes. Coming to number 4. Number 4, ruled by the planet Rahu. राहु का नाम आते ही सब थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं. बिकॉज किसी भी इंसान को न्यूमरोलॉजी आए ना आए, न्यूमरोलॉजी के बारे में वो अवेयर हो ना हो, थोड़ा सा भी ऑकल्ट में उनको इंटरेस्ट होगा तो उनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा नॉलेज जरूर होता है. सो ऑल ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट्स. राहु के बारे में हम सबने सुना है. राहु देव रूल्ड बाय द प्लैनेट, रूल्ड बाय द नंबर 4. 4 नंबर वाले लोगों का प्लैनेट होता है राहु. नाउ हाउ आर दीज पीपल? ये सिर्फ सर है. इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को क्लास में सुनाऊंगी. ये सिर्फ सर है, इसकी बॉडी जो है वो केतु देव है. ये सिर्फ सर है जो कि जिनको हम राहु के नाम से जानते हैं. These people, they have very sharp mind. इनका दिमाग बहुत तेज होता है, उसके साथ ही साथ इनकी याददाश्त, इनकी मेमोरी भी बहुत तेज होती है. They have good memory as well as a very sharp mind. These are the people who are very innovative. संसार में 80% scientists, they have Rahu in their charts. क्या तो राहु से रूल्ड होंगे या फिर उनकी चार्ट में एक प्रोमिनेंट वेल प्लेस्ड राहु होंगे. Because they have very, very innovative and advanced thinking. जहां पे दुनिया सोचना बंद करती है, राहु वहां सोचना शुरू करते हैं. आज से 10 years पहले क्या हम में से किसी ने भी ऐसा सोचा था कि आज से 10 years के बाद ग्लोबल लॉकडाउन होगा, कोविड की वजह से ग्लोबल लॉकडाउन होगा, बट वी विल स्टिल बी कनेक्टेड बाय Zoom प्लेटफॉर्म, एनी काइंड ऑफ वीडियो प्लेटफॉर्म. हम वहां पे क्लासेस करेंगे, हम वहां पे किटी पार्टीज करेंगे, हम वहां पे बिजनेस मीटिंग्स करेंगे जूम के ऊपर, स्काइप के ऊपर. किसी ने ऐसा सोचा था? हमने कभी नहीं सोचा था. 10-15 years पहले ये सब कॉन्सेप्ट बहुत नए थे, जस्ट आ ही रहे थे फॉरेन कंट्रीज में. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं. This was the idea generated by a person who was ruled by Rahu at least 50 years back. ऐसे होते हैं वो जो राहु जो होते हैं. फोन, मोबाइल फोन के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है. Of course, it was an idea which was generated by a person who had a well-placed or ruled Rahu in his chart. At the same time, ये लोग बहुत मूडी भी होते हैं. इनके बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं. अभी इनको गुस्सा आ गया, अभी ठंडे हो गए, अभी इनका ये करने का मन है, अभी ये करने का इच्छा ही नहीं है बिल्कुल. इस तरह से होते हैं. तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग सिंस इतने शार्प होते हैं, इनके पास नया नया आइडियाज आता है जो ये दोनों तरह से यूज करते हैं. किसी को खुश करने के लिए तो यूज करेंगे ही, किसी को परेशान करने के लिए भी ये लोग इस आइडिया को यूज कर सकते हैं. तो फिर किंगडम में इनकी क्या जगह होगी? किंगडम में इनकी जगह होगी रिकवरी एजेंट की.
साइंटिस्ट की, रॉबिन हुड की। रॉबिन हुड जो कैरेक्टर था वो क्या करते थे, अमीरों से स्पेशली जो लोग इलीगल मनी अपने पास होल्ड करके रखते थे, जिनके पास ब्लैक मनी होता था, उनको वो लेते थे एंड वो गरीबों में उसको बांट देते थे। बेसिकली ही यूज्ड टू डू डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। राजा इनकी हेल्प वहीं पे लेता है, राजा रानी उनके देवगुरु, लेकिन उसके साथ में एक ऐसा आदमी भी तो होना चाहिए ना जिसका दिमाग बहुत तेज चले, जो किंगडम में नए नए आविष्कार कर सके, नए नए इन्वेंशन कर सके, लोगों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एनर्जी को इवन करके रख सके, एंड उसके साथ ही साथ नए नए आइडियाज लेके आ सके। There's where Rahu comes into picture in the kingdom. Yes, मैं आप लोग को स्टोरी के हिसाब से इसलिए समझा रही हूँ कि you will tend to remember it always. मैं अपने सारे sessions I link them with a story, so it's easier for my students always to remember them. Now, who are the people who are ruled by Rahu? Number 4. So, of course, people who are born on the dates 4, 13. कोई बोलेगा? And 24th of any month. They are the people. 22 22nd of any month. They are ruled by the planet. and even 31. 31. Yes. 31. Yes. मैं वेट कर रही थी कि कोई कुछ बोले. Thank you so much. Most welcome. Okay. Coming to number 5. Number 5, the balancing number of the number plane. ये बीच का नंबर है. 4 नंबर इसके ऊपर है, 4 नंबर इसके नीचे है. It is also known as the balancing number of the number plane. Raja, Rani, Dev Guru, recovery agent or the Robin Hood. Number 5 is the prince. उस kingdom का राजकुमार. It is ruled by the planet Mercury. Who are the people who are ruled by number 5? Now I know you all understand, so please mention who are the people who are ruled by number 5. 5, 14, 14. 23. Yes. 5, 14 and 23rd. People who are born on these dates, they are ruled by number 5, or they may also have a destiny 5. Destiny number again is very important. We'll be coming to it. These people, since ये prince है, तो इनके पास सारे amenities होते हैं, सारे planets इनके favor में होते हैं. Because prince जो होता है वो सबका प्यारा होता है, राजा का, रानी का, and all the people in the kingdom. At the same time, these people are also very good communicators. Because the people who are ruled by number 5, the prince knows कि हमको किसको क्या बोलना है, इससे वो काम कर देगा मेरे लिए. Because he's getting the support of all the planets, right? So they are also very good communicators. At the same time, these people, they're good for banking industries as they are very calculative also. Restless at times and at times lazy at times. Both the attributes they have. It also depends कि उनका Mercury कैसे placed है. Since it's the prince of the number plane, people who are ruled by number 5, they also have princely attributes in them. वो लोग अपनी उम्र से हमेशा छोटे दिखते हैं. आपको उनको देख के उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा. टीवी में एक ऐड आता था ना संतूर का, आपको देख के आपकी उम्र का पता नहीं लगता है. Something like this, इस तरह का कुछ होता था. These are the people who get these kind of compliments when they go out. So people who are ruled by Mercury, and they are also at the same time very balanced people, because it's the balancing number of the number plane. Yes. Coming to the next number, number 6, the Venus. It is also known as the Daitya Guru Shukracharya. हमारे पास देव गुरु है जो बोलते हैं कि हमें सारे अच्छे काम करने चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, हमें एथिकल रहना चाहिए, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स एसेट्रा को लेके चलना चाहिए.
तो उसके साथ ही साथ एक और डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ राजा जाता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, भोग विलास के लिए, लग्जरी के लिए, मटेरियलिज्म के लिए. That department is ruled by the Daitya Guru Venus. Now, who are the people who are ruled by number 6? 6, 15, 24. Yes, thank you so much. People who are born on 6th, 15th and 24th, they are ruled by the planet Venus, or they have a destiny 6. These people, they are very much prone to luxuries of life. इनके घर आप जाओगे ना, आपको दिखेगा कि इनके घर बहुत सुंदर होंगे, छोटा भी घर होगा ना, ब्यूटीफुल डेकोरेटेड हाउसेस, एंटिक शो पीसेस होंगे, सब चीजें वेल सेट होंगी, किचन पूरा वेल स्टैक्ड होगा अगर होम मेकर है तो. एंड दे एट द सेम टाइम दे वेरी गुड होस्ट आल्सो, गुड कुक्स, एंड दे आर आल्सो प्रोन टू ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ. खुद भी देखने में ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं. जैसे मैंने नंबर 5 के लिए कहा, they look younger in age. Same also applies to number 6 also. They are beautiful people under the sun. At the same time, they also look younger in age than their usual age. And they are also attracted towards all the materialistic things in life. Glamour, beauty, luxury, comfort, ये सब इनके फोटे होते हैं. 3 नंबर वाला अगर बोलेगा कि चलो आज हम कीर्तन में चलते हैं, तो 6 नंबर वाला बोलेगा नहीं नहीं, शाम को कोई पार्टी में चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे, कीर्तन में जाने का कोई मूड ही नहीं है मेरा. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 and 6. इसीलिए 3 और 6 को हम कई बार 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं. व्हेन इट कम्स टुगेदर, वो हम करेंगे जब हम कॉम्बिनेशंस में आएंगे. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. क्या होता है जब आपकी चार्ट में 3 और 6 एक साथ में आते हैं, क्या अच्छा होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती है. बिकॉज इट इज ऑल्सो अ गुरु. दैत्य गुरु बिल्कुल हो सकते हैं वो, लेकिन वो है तो गुरु ही ना. नॉलेज उनके पास भी बहुत है, आइडियाज एंड क्रिएटिविटी उनके पास भी बहुत है. यस तो क्या होगा उस समय जब 3 और 6 एक साथ मिलेंगे? प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगा कि आपको किसी तरह कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, घर में प्रॉब्लम होगी, या फिर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी? क्या होगा उस समय पे? Yes, so we'll come to it. Coming to number 7. Number 7 people ruled by Ketu. इसी का सर है राहु, जो हमने नंबर 4 में डिस्कस किया. Number 7 is Ketu. Now, who are the people who are ruled by number 7? Please specify. 16, 25, 7. 7th, 16th and 25th of any month, they are the people who are ruled by Ketu Dev. केतु देव के पास में अपर बॉडी, सर मतलब धड़ से ऊपर की बॉडी उनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ लोअर बॉडी है. These people, they are very wise, very very intuitive. नंबर 2 के बाद अगर कोई प्लैनेट सबसे ज्यादा इंट्यूटिव है तो वो नंबर 7 है. बिकॉज भगवान हमें अगर कोई कमी देता है तो उसके साथ ही साथ हमें कुछ डिवाइन पावर्स भी देता है, एक सिक्स्थ सेंस हमें देता है. नंबर 7 इज हैविंग दैट सिक्स्थ सेंस. पूर्वाभास जिनको होता है, इंट्यूशन के साथ साथ जिनको पूर्वाभास होता है, they are the people who are ruled by number 7, or they have a well placed Ketu in their chart, positive Ketu in their chart, exalted Ketu in their chart जिनके पास होगा, they are the people who have a prominent number 7. Very very spiritual people also, deeply dedicated to God. बहुत ज्यादा इनको भक्ति में आस्था होगी, morally बहुत sound होंगे ये लोग, and very wise people also. Yeah. So coming to सूर्यपुत्र शनि, शनि देव का नाम आते ही बहुत सारे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो शनि आ गया, शनि के 7.5, शनि का ढैया, ऐसा हम सोचते सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम सोचते हैं 7.5 आ गई, अब तो बैंड बजने वाली है. बट आई वुड से फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हमें उसी चीज का फल मिलता है जो कि हमारे कर्मास, जो कि हम कार्मिक बैलेंस लेके आए हैं. एज बीइंग अ कार्मिक नंबर, इट इज आल्सो नोन एज द जज. शनि देव जो है, ही एक्ट्स एज अ जज.
हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल हमें मिलेगा, यही शनिदेव हमें कहते हैं। यस, सो जब शनिदेव आते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे लाइफ में हमें एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, हमें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पीपल हु आर रूल्ड बाय शनि, दे आर वर्कaholic पीपल। उन लोग का हार्डवर्क, उन लोग का फील्ड वर्क औरों की अपेक्षा अगर ज्यादा होता है, so we can also tell them they are workaholic people. शनि देव की जो चाल गति होती है वो थोड़ी स्लो होती है, वो थोड़ा धीरे चलते हैं। So people who are ruled by Shani, they also face delays and struggles in their life because उनके सारे काम धीरे धीरे होते हैं। But it is a very beautiful planet. It is the only planet which is having rings around it. One of the most beautiful planet of the number system. These people are very emotional and very empathetic also. So they do a lot of social service. किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता है। अगर पर्सन एथिकली करेक्ट है तो ये उसका दुख बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। So they also end up doing a lot of social services in their life. Yes. Coming to number 9, last number of the number plane, Mars यानी कि मंगल. It is also known as the commander in chief. एक मिनट, मैंने आप लोग को केतु देव का इम्पोर्टेंस इन द किंगडम नहीं बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट। केतु देव जो है वो हमारे किंगडम के फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है एंड साथ ही साथ वो राजपुरोहित भी है। राजपुरोहित वो होते हैं जो हर चीज में जब पूजा पाठ सही तरीका से हुआ कि नहीं, कब क्या होगा, उसका ख्याल रखते हैं। उसके साथ ही साथ इनको हम फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि खजांची भी बोल सकते हैं। So people who are ruled by Ketu, generally they are found in industries like finance, financial analysis, and also insurance industries. They take care of these things simultaneously. Religious and finance, they go side by side for these people. These people, since ये इनके पास सर नहीं है, इनके पास एक कमी है, तो ये औरों की तकलीफ को जल्दी समझते हैं। So these people, they are very good healers. So since we have healers in the session, कोई भी हीलर डॉक्टर अगर होता है उनके पास नंबर 7 कहीं ना कहीं से जरूर आएगा, चाहे उनके डीओबी से आओ, चाहे उनके फोन नंबर से आओ, चाहे उनके नेम नंबर से आओ, लेकिन कहीं ना कहीं से नंबर 7 उनकी लाइफ में जरूर आएगा। वेल प्लेस्ड केतु उनके पास जरूर रहेगा। जिस टाइम पे वो सीख रहे होते हैं वो विद्या, उस टाइम पे उनके 7 का डीबीए भी आ सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नंबर 7 आएगा ही आएगा। Yes. Coming to Suryaputra Shani. Suryaputra Shani is the judge of the kingdom. कहाँ पे न्याय करना है, कहाँ पे अन्याय हो रहा है उसको रोकना है, कहाँ पे किसकी हेल्प करनी है, कहाँ पे किसको पनिश करना है, जज उसका टेक केयर करते हैं। So he is the one who takes care of all these things. Then coming to number 9. अब पूरा किंगडम है, उसको किसको संभालना है, सेना को किसको संभालना, सेना संभालेगी किंगडम को, बाहर से कोई आक्रमण ना हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना कर दे। लेकिन उन सबको किसको संभालना है, सेनापति को। मंगल इज द सेनापति, रूल बाय द प्लैनेट मार्स, 9 नंबर। तो ये लोग जो सेनापति होंगे कैसे होंगे, उनको सबको संभालना है, सबको ध्यान रखना है, एट द सेम टाइम उनको सबको कमांड भी करके रखना है। These people, yes, of course, they are very commanding, very aggressive also, because सेनापति aggressive नहीं होंगे, रक्षा नहीं कर पाएंगे ना। उसके बाद इनको प्लान्स भी बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज भी बनानी है कि कैसे हम आगे से आगे प्लान्स बना के रखें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारे पास आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम कैसे उसको रोक पाएंगे। So these people, they are very good strategists also. At the same time, since these people take care of the entire kingdom, they are also very humanitarian people. सबका ध्यान रखने वाले, सबके लिए काम करने वाले, सबके लिए मर मिटने वाले, but bullshit नहीं लेंगे, very aggressive people. Yes, so friends, these were the 9 numbers of the number plane. अब हम आएंगे
अब हम आएंगे हाउ टू फाइंड द बेसिक नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर. Yes, so just give me 1 second please. So I'll share the whiteboard with everyone. आप लोग सब मेरे व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हो? हाँ, बट लाइट की वजह से थोड़ा क्लैरिटी कम है रश्मि जी. I think it's clear now. हाँ, now it's clear. Yeah. Thank you so much. Okay. So we will take date of birth. अभी आप लोग में से एक बार date of birth लूंगी and we'll see कि हम लोग उसमें basic number and destiny number कैसे निकालते हैं. So please give me a date of birth, friends. कोई भी एक जगह पर DOB दो. 2 February 76 I'm sorry. 020976. राकेश मुझे आपकी बात क्लियर नहीं समझ आ रही है, फिर से बोलिए प्लीज. 02091976. ओके, इनका नाम? राकेश कुमार शाह. अच्छा, आपका खुद का ही है? जी हाँ. ओके, वी हैव टेकन अ डेट ऑफ बर्थ. अभी हमें इसमें निकालना है बेसिक नंबर. बेसिक नंबर, बेसिक नंबर हमें कैसे निकालना है? जो नंबर से इंसान जिस डेट पे बॉर्न हुआ है वो इसका बेसिक नंबर है. तो इनका बेसिक नंबर बहुत आसानी से निकल गया. 0 + 2 बेसिक नंबर हो गया 2. अब हमें निकालना है इनका डेस्टिनी नंबर. डेस्टिनी नंबर विल बी द सम टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ. आप लोग सब अपनी अपनी कॉपी में करना शुरू कीजिए, so it would be clear for everyone. So it would be 2 + 9 + 1 + 9 + 7 + 6. It comes to 7. Yes, clear for Yes. everyone? Clear for everyone, I believe. yes. Yeah. So ये हो गया ना, बेसिक नंबर हो गया 2, डेस्टिनी नंबर हो गया 7. अब हमको इसको वैदिक ग्रिड में फिल करना है. हाउ मेनी ऑफ? हाँ जी प्लीज. Excuse me रश्मि जी, हाँ जी. सॉरी, मेरे को एक सवाल है. हाँ जी प्लीज टेल मी. या आपने बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर बोला 2 और 7 हो गया. सो मतलब आपके हिसाब से बेसिक और डेस्टिनी इज जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ड्राइवर कंडक्टर पैसेंजर, तो उसमें फिर ड्राइवर और कंडक्टर का मतलब बेसिक और डेस्टिनी हो गया क्या? यस, बेसिक नंबर इज द ड्राइवर. ओके आप कैसे हो? हाउ आर यू? ओके 2 नंबर इज आप हो. 2 नंबर इज नेचर. ओके नेचर ऑफ द नेटिव. नंबर 7 उनका लाइफ पाथ, जिंदगी उनकी कैसी होगी. ओके उनका डेस्टिनी कैसा होगा. हम बोलेंगे ना कि भाई हमने तो ऐसा किया लेकिन हमारे भाग्य में जो था वो हो गया, डेस्टिनी में जो था वो हो गया. वही है इनका नंबर 7. ओके आगे का कैसे होगा वो है नंबर 7. तो ये हमने लिखा ऊपर में बेसिक एंड डेस्टिनी. ओके. एनी मोर क्वेश्चंस किसी का भी? मैम एक सवाल. हाँ श्योर, प्लीज टेल मी. हाँ जी मैम. मैम जैसे अगर ये 2 नंबर है इनका, 2 + 9 तो 2 बेसिक नंबर है. अगर 2 नंबर का हो जैसे 28 29 जैसे, तो 1 + 1 जैसे 29 है तो 2 और 9 11 हो गया, राइट? तो 1 + 1 यानी 2 हो गया आपका 2 हो जाएगा बेसिक नंबर. क्या?
है ना। और फिर लेकिन जब हम डेस्टिनी नंबर काउंट करेंगे तब हम ओनली उसका वो 2 लेंगे या फिर 2 + 9 पूरा लेंगे? नहीं, ये इस तरह से लेंगे ना, जैसे अच्छा मैं तो कंपाउंड डेट लेके आपको दिखाती हूँ। कंपाउंड डेट आप लोग के पास अपना ही दीजिए, वेणु जी अब अपना ही दीजिए। 29091975 1975। अब इसका बेसिक नंबर, बेसिक नंबर मीन्स हो गया 11 हाँ, इसका बेसिक हो गया 2। देखिए मैं एकदम पूरा करके दिखाती हूँ। 2 + 9 11, 11 हुआ, 1 + 1 2 हो गया। दैट इज द बेसिक नंबर इज 2। ठीक है, डेस्टिनी नंबर हम करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 2 + 9 प्लस 0 + 9 प्लस 1 + 9 प्लस 7 + 5 6 हुआ। ठीक है, क्लियर फॉर यू, क्लियर फॉर एवरीवन आई वुड से। यस थैंक यू सो मच। तो इनका हो गया, वेणु जी का हो गया। 2 is the basic number, 6 is the destiny number। ठीक है, अब ये जो बेसिक डेस्टिनी नंबर है इसको हमें फिलअप करना है वैदिक ग्रिड में। अब नाउ हाउ इज द वैदिक ग्रिड? आई बिलीव आप लोग में से नीतू जी इज अ लोशो ग्रिड रीडर। आई एम राइट नीतू जी, am I right? वैदिक ग्रिड किसी को भी आती है यहाँ पे? या एनीवन हु इज प्रैक्टिसिंग वैदिक ग्रिड? कोई है यहाँ पे? नहीं है, कोई बात नहीं। वैदिक ग्रिड हमारा होता है 319। आपका पूरा ग्रिड नहीं दिख रहा है रश्मि जी। अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मेरा थोड़ा सा अभी दिखाई पड़ेगा। हाँ 284 ये है हमारा वैदिक ग्रिड। दिस इज आवर वैदिक ग्रिड। ये है हमारा टॉप लाइन, सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन। आप फिर से कॉपी कर लीजिए सब कोई। 319675284 ये है हमारा वैदिक ग्रिड का ओरिजिनल फॉर्म। अब हम इसके साथ ही साथ बनाएंगे अपना ग्रिड। अपना ग्रिड में हम ये नंबर्स के हिसाब से जो अपना डीओबी है वो हम यहाँ पे प्लेस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर 2। नंबर 2 यहाँ पे कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। इस 2 का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑल द नंबर्स आर टू बी प्लेस्ड। इस 2 का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। कमिंग टू नंबर 9, 9 यहाँ पे है, 9 का 9 यहाँ पे लिखा। ठीक है, देन अगेन कम्स अ 9, ये 9 यहाँ पे लिखा। नाउ कम्स अ ट्विस्ट। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर हम लोग नहीं लेते हैं। We don't have to take the century number। तो इनका सेंचुरी नंबर क्या है? 19। जब हम कैलकुलेट किए थे तब हमने सेंचुरी नंबर को भी ऐड किया था, लेकिन जब हम ग्रिड में प्लेस करेंगे उस समय सेंचुरी नंबर को हम लोग नहीं लेंगे, ग्रिड में प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज हमने इसको ऐड किया है। सेंचुरी नंबर का जो बेनिफिट्स है वो एडिशन में आ गया है, तो प्लेसमेंट में हम लोग इसको और नहीं लेंगे, बिकॉज सेंचुरी नंबर इज कॉमन फॉर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे? पैसेंजर नंबर लेंगे 7 and 5। 7 कहाँ पे? यहाँ बीच में 7 आया। 5 कहाँ पे? यहाँ पे साइड में 5 आया। ये हमने प्लेस किया इनका डीओबी जैसा था वैसे ही, सेंचुरी नंबर को छोड़ के। उसके बाद आता है हमारा बेसिक डेस्टिनी, जो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। बेसिक में क्या है? 2 है, 2 के बगल में 2 लगा दिया। डेस्टिनी में क्या है? 6 है, 6 का यहाँ पे 6 लगा दिया।
तो ये वेणु जी का वैदिक ग्रिड बन के कंप्लीट हुआ. दिस इज आवर वैदिक ग्रिड. क्लियर टिल नाउ फॉर एवरीवन? प्लीज स्पेसिफाई. Yes. बाकी सब कुछ एक तो जन आंसर कर रहे हैं मुझे लग रहा है. हाँ जी मैम, क्लियर हो रहा है. ओके फाइन, थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स जस्ट टेल मी समथिंग. अभी जो मैंने आप लोग को 1 से लेकर 9 तक पढ़ाया, और आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है, तो ये जो वैदिक ग्रिड बनता है, वैदिक ग्रिड के हिसाब से डेफिनेटली यस, वेणु जी के बारे में हम कुछ बता सकते हैं. We can tell something about Venu ji over here from this Vedic grid. Yes, we can. ये जो वैदिक ग्रिड है, यही हमारा न्यूमेरोस्कोप है. इट इज अ वैदिक न्यूमेरोस्कोप. जब लोशु काम करते हैं उसका ग्रिड चेंज हो जाता है. कंक्लूजन्स ऑलमोस्ट सेम ही आता है, लेकिन ग्रिड चेंजेस. यस मैम, सो ये जो एनीवन बाकी के ब्लैंक है वहां पर कुछ नहीं करेंगे हम? बाकी के जो ब्लैंक है ना, वो उसमें हमको अभी कुछ नहीं करना है, बिकॉज जब एडवांस न्यूमरोलॉजी आप करोगे, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें क्या होता है, आई गिव यू अ सॉफ्टवेयर. तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारा डीबीए आता है ना, दशा भुक्ति अंतरा, उस तरह से डीबीए आएगा. तो हो सकता है डीबीए, सपोज आपका 8 का डीबीए चल रहा है, 8 की महादशा, 7 की अंतरदशा एंड 2 की प्रत्यंतर. तो सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा. तो उसके हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे, क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो हाउ डू यू प्रेडिक्ट फ्रॉम देयर? यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. लोशु और वैदिक में सबसे बड़ा फर्क ये है, वैदिक में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम एक बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग वहां से, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, हम देख सकते हैं. वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वेरी क्लोज टू एस्ट्रोलॉजी, वेयर एज लोशु ग्रिड इज आल्सो गुड. बहुत अच्छा वो है, सिस्टम है कैलकुलेट करने का, लेकिन उस वहां से फाइनल प्रेडिक्शंस आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू बी डन. वैदिक न्यूमरोलॉजी में फाइनल प्रेडिक्शंस आर वेरी वेरी इजी. वेणु जी के बारे में उनका ये चार्ट देख के मैं ये कह सकती हूँ कि उनका जो भी काम है, उनको घंटों घंटों एक ही जगह पे बैठ के काम करना होता है. एंड ऑफ कोर्स यस, शी इज अ हीलर. उन्होंने स्पेसिफाई किया, आप लोग देख सकते हैं उनके चार्ट में नंबर 7 है. शी इज अ हीलर as she specified earlier. उसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनके इंट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग है. नंबर 7 इंट्यूशन का नंबर, नंबर 2 इंट्यूशन का नंबर, makes her a healer, right? She must be very balanced, also good in communication. Number 5. नंबर 9, सबको लेके चलने वाले. हीलर में एक बड़ा क्वालिटी होना चाहिए. तो आप लोग देखो उनकी चार्ट में नंबर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रोफेशन को. तो आपको क्या लगता है, इनको न्यूमरोलॉजी सूट करेगा क्या? वो न्यूमरोलॉजी करके उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे? वुड बी शी एबल टू डू दैट? हाँ, वो कर लेंगे. हाँ, कर लेंगे. कर लेंगे, यस, बिकॉज इंट्यूशन चाहिए, इंट्यूशन है. ह्यूमैनिटेरियन चाहिए, कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन है. प्लस एट द सेम टाइम शी आल्सो हैज number 6, Venus, family oriented. At the same time she also has good presentable qualities. ठीक है. तो yes, she would be able to practice numerology as well. occult के किसी भी फील्ड में she would be equally successful as she is in healing. कई बार होता है हम ये देख पाते कि इंसान कोई चीज कर तो रहा है, लेकिन क्या वो उसमें सक्सेसफुल है कि सो है, कि उसका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है. लोग हमारे पास उसी लिए आएंगे ना. चार्ट देख के हम ये तो बोल सकते हैं कि हाँ, ये आदमी इस तरह का काम करता होगा, लेकिन किस लेवल पे कर रहा है उस काम को, उसका काम ठीक चल रहा है कि नहीं. वो आके हमको बोलेगा भाई हमारा काम तो एकदम डामाडोली चल रहा है, कोई कमाई धंधा हो ही नहीं पा रहा है. तो हर समय क्लाइंट सही बोलेगा जरूरी तो नहीं है ना. बहुत लोग ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद भी फिर टेल की नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. तो वो एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर को पता होना चाहिए कि हमको उस समय में कैसे हैंडल करना है. अगर आपके पास वो पावर्स ही नहीं है, आपके पास वो नॉलेज ही नहीं कि आप वो रीड करके उसका लेवल पता कर सको.
So how will you guide that person? Because वो तो आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा, या फिर ऐसे बोलेगा बाहर जाके इनको कुछ समझ में ज्यादा आता नहीं है, हम जो बोले उसी पे हाँ हाँ बोल दिया। वैदिक न्यूमरोलॉजी गिव्स यू अ क्लियर इनसाइट कि आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है, कैसे गाइड करना है सामने वाले को। यस, लेट अस टेक अनदर डीओबी। We will take another DOB, तो हम लोग के लिए क्लियर रहेगा कि हम लोग ठीक से समझ पा रहे कि नहीं। मैम मैं बताऊं? हाँ श्योर, बताइए। ये ऐसा डीओबी लीजिए ना रश्मि जी जिसमें नंबर्स कम हो। हाँ हाँ मेरे में 3 बार 7 आ रहा है, तो मुझे उसके लिए पूछना है। ये कौन बोल रहा है? नीरू। नीरू, अच्छा नीरू जी। डीओबी बताएं। 17 जनवरी 1977। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसका बेसिक डेस्टिनी कैलकुलेट करिए। बेसिक 8। डेस्टिनी 6। क्या 6 ही है कि कुछ और है? मैं भी तो कहीं रॉन्ग हो सकती हूँ ना। उन्होंने 17 जनवरी बोला। 17 हाँ जी 17 जनवरी 1977। हाँ, तो डेस्टिनी क्या आ रहा है आपका, आप बताओ। मेरा 6 नहीं, डेस्टिनी नहीं, वो 8 है। ये तो 8 मैंने लिखा, ये क्या? हाँ जी 6। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डरते क्यों है? मैम बोर्ड में जो आप लिख रहे हैं ना वो दिख नहीं रहा है, वो शो नहीं हो रहा है। अब शो हो रहा है जी। अब आप लोग ग्रिड बनाओ, ग्रिड बना के नंबर्स को प्लेस करो। सेंचुरी नंबर आपको प्लेस नहीं करना है। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आया 1 की जगह 1 लिखा, फिर आया 7 की जगह 7 लिखा, फिर आया 1 की जगह 1 लिखा। सेंचुरी 77 लेंगे। लेना, फिर 7 हमने लिखा, जी। फिर आया 8 हमने लिख दिया 8, फिर आया 6 हमने लिख दिया 6। ठीक है, ये बन गया इनका वैदिक ग्रिड। ठीक है, अभी आप लोग को मैंने पढ़ाया, इनके पास जो नंबर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो होते हैं बेसिक एंड डेस्टिनी। तो जब भी आप लोग को ग्रिड को रीड करना होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं बेसिक डेस्टिनी के ऊपर रीड करिए, उसके बाद यू कम टू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आप लोग देखो इनका 8 नंबर 6 नंबर के हिसाब से इनके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। 8 नंबर क्या बोलते हैं? नंबर 8 सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर, जज है, इमोशनल है, तो शी मस्ट बी वेरी इमोशनल आल्सो। बहुत हार्ड वर्क करना होगा, वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक है, यस राइट। सोशल सर्विस में भी होंगे, बहुत ज्यादा लोगों का दुख दर्द सुनना, उनको हेल्प करना। इमोशनल एंड एम्पैथेटिक है, बहुत मदद करती होंगी। यस, बट एट द सेम टाइम शी इज आल्सो वेरी शक्की। कोई भी चीज को डबल चेक करती है, ट्रिपल चेक करेंगे, उसके बाद उस चीज को करेंगे। ऐसा सही है नीरू जी? जी जी बिल्कुल सही है। मैं बता रही हूँ, मेरी सिस्टर है ये। अच्छा बहुत अच्छी बात है। ये जो इतनी बार साथ आता है ना, ये आपको ऐसा बनाता है कि आप कोई भी चीज को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी चेक करेंगे। जैसे घर से बाहर जाना है, लॉक कर दिए, चले गए नीचे, वापस ऊपर आएंगे, शायद मैंने पंखा खुला छोड़ दिया था, शायद फ्रीज ऑफ नहीं किया था, शायद गैस बनने की होगा। इस तरह की चीजें ये 777 आपको देता है। ये आपको जासूस बनाता है, जासूस। जो स्पाई होते हैं ना, जैसे जो गवर्नमेंट के स्पाई होते हैं, दूसरे देश में जाना, किसी के रेजिमेंट में घुसना, खबर लेके आना, ये लोग वैसे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बाल की खाल निकालना,
आप बोलोगे कि ये बेसिक नंबर है, तो बेसिक का स्पेलिंग लिखा BASIC, तो ये बोलेंगे नहीं मैम बेसिक का स्पेलिंग ऐसा भी होता है, बी का मतलब कुछ और भी होगा। मतलब दिस काइंड ऑफ पीपल। आई एम हैप्पी अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे, बिकॉज आपके पास से जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो किसी के पास से नहीं आएंगे। आई नो दैट। सो दिस वाज अबाउट हर। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें चैट बनानी है, उसको एनालाइज करना है, और मैं अभी आप लोग को सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी कैसे सॉफ्टवेयर में DBA चलता है। सो आप लोग को समझ में आता है कि आप लोग को कब क्या प्रेडिक्शन करना है। मीनू जी आप क्या करते हो? साथ हेलो, आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन? आर यू प्रोफेशनल? वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, हस्बैंड के साथ शॉप पर बैठती हूँ। अच्छा, क्या चीज का काम है आप लोग का? हमारा क्लॉथ मर्चेंट है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके। इंसान को देख के आप बोल दोगे ना कि ये सामान खरीदेगा कि नहीं, ऐसे बोल देते होंगे ना? जी, मुझसे ज्यादा ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, उनसे मैं सीख लिया। अच्छा अच्छा, नहीं किसी से भी सीखे हो, बट यू आर अ गुड लर्नर, आई नो। ओके, सो आप लोग को क्लियर हुआ हाउ टू फाइंड आउट बेसिक एंड डेस्टिनी? कम टू द सॉफ्टवेयर नाउ। Yes. Yeah. Friends, just give me a minute's time. आप मुझे 1 मिनट का समय दो. I'll be back in a minute. Yes, I am back. I'll show you the. मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ कि अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो, इट्स अ बेसिक कोर्स में सॉफ्टवेयर नहीं यूज होता है, उसमें मैं आप लोग को ऐसे बोर्ड पे करवाऊंगी। व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स, यस ऑफ कोर्स उसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है, एंड यू कम टू अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें, मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैम कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या जिसमें मतलब जिसमें आपके सब लिंक की इंफॉर्मेशन आती हैं? एक्चुअली मुझे मेरी भांजी ने आज लिंक भेजा तो मैंने ज्वाइन किया है। ओके, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, सो मैं आपको अपना फोन नंबर दे दूंगी, सो यू कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर। आप नंबर शेयर कर देंगे मैम अभी चैट में? हाँ, मैं अभी कर दूंगी आपको नंबर शेयर। I think everyone can see the screen. Yes, ma'am. आप लोग सबको स्क्रीन देख पा रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी।
तो just give me your date of birth again. कोई आप मुझे जिसने अभी तक दिया नहीं है वो प्लीज अपना DOB दे मुझे. 2nd Feb 1988. Who's this? ये कौन था? Ritika. Ritika. तो 2nd Feb 1988. This is a software जो हम यूज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे ईयर आ रहा है और यहाँ पे मैंने इनकी DOB डाली. ये हमारा वैदिक ग्रिड जो रहता है, तो यहाँ पे इनका DOB, यहाँ पे इनका आपका DOB खुला मैम स्क्रीन पे सिर्फ वही दिख रहा है हाँ, पहले। स्क्रीन पे खाली गूगल और ये सब दिख रहा है, नंबर्स और नल ये सब, बट कुछ खुला नहीं है. अच्छा 1 मिनट. हाँ just a moment please. Yeah, I believe everyone can see the screen now. Yes. Yeah. Actually कुछ नेट के इश्यूज है. मुझे लग रहा है कि मेरे लिप्स भी पहले जा रहे हैं और मेरी वॉइस बाद में आ रही है. मुझे वो भी फील हो रहा है. तो कुछ नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है. ओके ठीक है. सो अभी आपने मुझे अपना DOB दिया 2nd of February 1988. कृतिका जी का DOB है, राइट? तो ये जो हमारा वैदिक चार्ट जो हमने बनाया था, जैसे हम DOB का जो वैदिक चार्ट बनाते हैं, जो वैदिक चार्ट यहाँ पे बना हुआ आएगा, डेस्टिनी नंबर यहाँ शो करेगा, वैदिक चार्ट यहाँ बना हुआ आएगा और ये चलता है. ये वाला सीरीज जो है इट्स चेंजिंग. ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा, ये स्टैग है. और ये हमारा जो DBA चलता है, DBA मतलब दशा भुक्ति अंतरा. 3 तरह की हमारी दशाएं होती है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी आती है. वो होती है हमारी महादशा, along with the अंतरदशा, along with the प्रत्यंतर दशा. प्रत्यंतर जो होता है वो हमें इवेंट स्पेसिफाई करता है. जैसे कोई पूछेगा कि मेरी शादी कब होगी, तो शादी हम देखेंगे भाई वीनस आएगा तब उसकी शादी होगी. वीनस शादी का कारक होता है. तो वीनस का सपोज DBA चल रहा है, महादशा में हम देखें यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई शादी तो इस ड्यूरेशन में होगा. तो भाई वीनस आएगा 6 साल के लिए, तो 6 साल में कब शादी होगा, कौन से साल में शादी होगा. तो हम चेक करेंगे अंतरा कि अंतरा में शादी के और जो फेवरेबल प्लैनेट्स है वो कब आ रहे हैं. तो यहाँ पे भी सपोज हम देखें कि अंतरा में जैसे 6 आया हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई इस साल 2017 में आपकी शादी हो सकती है. तो फिर आप पूछोगे मेरे को 2017 में कब शादी होगा, मेरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक में मेरा शादी कब होगा. अब तो उसके लिए हमें चाहिए प्रत्यंतर दशा. तो ये है हमारा प्रत्यंतर दशा, जिसका रीडिंग कैलकुलेशंस मैं आप लोग को सिखाऊंगी. पहले मैनुअली करवाऊंगी, उसके बाद आप लोग को सॉफ्टवेयर में सिखाऊंगी. बिकॉज अगर मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को सॉफ्टवेयर दे दिया, मैनुअली करना फिर आप लोग को कभी नहीं आएगा. इसीलिए मेरे कोर्स थोड़े टाइम टेकिंग होते, लंबे होते से. आप लोग ने आज देखा कि मैंने शुरू किया 3:30, 5:15 हो चुका, लेकिन मेरा क्लास अभी तक खत्म नहीं हुआ. बिकॉज आई बिलीव कि मुझे कुछ देना है तो मैं क्वालिटी दूं, भले उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए. इसीलिए मेरे कोर्स भी लंबे होते, टेक्स टाइम. और टीचर्स उस कोर्स को सकता है 1 महीना में कंप्लीट कर दे, बट आई वांट एटलीस्ट 2 months टू कंप्लीट माय वैदिक न्यूमरोलॉजी एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स. ये मैंने शॉर्ट कोर्स पहले इसलिए रखा कि पीपल कैन ज्वाइन एट अ स्मॉल अमाउंट, दे कैन चेक आउट माय वर्क. वो देख सकते हैं कि कैसा न्यूमरोलॉजी, कैसा वर्क करता है वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंड उसके बाद दे कैन ज्वाइन द एडवांस्ड एंड प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी. तो बेसिक न्यूमरोलॉजी में ये वाला सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं आता है. ये हमारे कैलकुलेशंस वगैरह के लिए जो होता है वो एडवांस न्यूमरोलॉजी में यूज होता है.
बेसिक न्यूमरोलॉजी में हम आप लोग को मैनुअली चार्ट बना के वहां से आप लोग को प्रेडिक्ट करना सिखाते हैं। मैं वहां पे आप लोग को ये भी सिखाती हूँ कि जैसे आपका मैंने दिखाया कि 3 बार 7 आया तो वो पर्सन बिकम्स वेरी सस्पिशियस एंड डबल चेक्स ईच एंड एवरीथिंग। डबल चेक से भी आगे, ट्रिपल चेक या 4 टाइम्स चेक। But at the same time, that person is also very intuitive. He or she understands कि क्या होने वाला है। जैसे उनकी शॉप में कस्टमर आएगा तो उसकी चाल ढाल देख के वो बोल देंगे कि वो सामान खरीदेगा कि ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, या फिर उनके घर में कोई सर्वेंट आया तो वो काम करेगा कि वो फाकी मारेगा, वो उनको एक आइडिया हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है न्यूमरोलॉजी में कि नंबर्स को देख के आप कैसे समझ पाते हो। ऋतिका जी का अगर हम प्रेजेंट डे चार्ट अगर देखते हैं तो किसके महादशा इनके पास आई हुई है, तो इनका विल कम टू 2022। इनका हमने डीओबी डाला, ईयर है 2022। तो इसके केस में देखिए इनका कौन सा महादशा चल रहा है। इनका महादशा चल रहा है 8 का, अंतरा आया हुआ है 4 का। 8 किसका नंबर होता है? हार्डवर्क करवाता है, डिलेज लेके स्ट्रगल लेके आता है। तो यस, इनकी लाइफ में अभी ये सब हो रहा होगा। उसके साथ ही साथ नंबर 4 भी, नंबर 4 आपके लिए जहाँ पैसा लेके आएगा, आपको नए नए आइडियाज लेके आएगा, उसके साथ साथ आपको मूडी भी बना देगा। जैसे कि मैंने अभी सेशन में आप लोग को पढ़ाया, आपकी चार्ट में पहले से 8 था, 8 में एक और 8 ऐड हुआ तो क्या होगा? 4 नहीं था तो 4 आने से अब क्या होगा? जो मैंने पढ़ाया उससे आगे भी डेफिनेटली बहुत कुछ है। उसके साथ में जो ये नंबर्स है जो प्रत्यंतर में है, जैसे यहाँ पे एक 4 पहले से है, अब एक 4 और आएगा, डबल 4 होगा तो क्या होगा? फिर इसके ऊपर 5 अगर यहाँ आता है, 5 4 होने से क्या होगा? कॉम्बिनेशंस दे अगेन हेल्प। कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है, उसका बेबी सही सलामत हो जाएगा कि उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगी या अबॉर्शन भी हो सकता है। We come to understand why these charts. ठीक है? आया फोन आया ना, वो आया ना कोई इसमें। I would request you to please mute yourself and उसके बाद हम बात करें प्लीज। या सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो हम लोगों ने किया। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन विच आई ट्राई टू फिनिश इट इन अ शॉर्टर टाइम, जो कि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं कम बोलूं, कम बताऊं, कम ट्रेड्स बोलूं। बिकॉज नंबर से जब आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी ना, तो नंबर्स आपके दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टॉप एट अ सर्टेन टाइम कि भाई इसके बाद आपको सेशन में नहीं बोलना है। आपके लिए बहुत मुश्किल होता है वो चीज। यस, सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स